वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम वही मोल फ्रैक्शन को क्लियर करना चाहेंगे, उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगला न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथेनॉल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। 46% इथेनॉल इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि 46 ग्राम इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 46 ग्राम of ethanol is present in 100 gram of solution. This is the solute. Okay, so water, mass of water can be calculated. Mass of water can be calculated from here. Solution, mass of solution minus mass of solute. It will come out 100 minus 46 equal to 54 gram. Okay, now number of moles of ethanol. Number of moles of ethanol. ethanol बच्चों जानते होंगे, ethanol मीन्स होता है C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 12 2 जा 24, 5 प्लस 16 प्लस 1 7 7 5 12 12 4 16 1 1 2 4। ओके, इक्वल टू गिवन मास by molecular mass. Given mass 46 gram and molecular mass 46 gram. So number of mole will come out 1. Now number of moles of water. Number of moles of water. Again water formula H2O, 2 plus 16 means 18. Okay, given mass of water divided by molecular mass of water. Molecular mass of water. Given mass you have calculated 54 gram. 54 gram by 18 gram. It will come out 3. Okay, now mole fraction of ethanol. Mole fraction of ethanol equal to N of ethanol divided by N of ethanol plus number of moles of water. ethanol का मोल 1 है and 1 plus 3 1 by 4 will come out to 0.25. Okay, from here you can calculate the number of mole fraction of water also. It would be 0.75. Now the next concentration term is ppm. ppm, parts per million. Parts per million. It is a very very small unit to express the concentration of the solution
Mainly it is used to express the pollutant ppm, parts per million. Similarly, ppb also used parts per billion. So my next concentration term is parts per million. Sorry, I have to erase it. Parts per million, and its short form is ppm. Okay, ppm. Million, you know, very simple. Million is 10 to the power 6. 10 to the power 6. 1 million, 2 million, जानते ही होंगे. ओके, इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं. जैसे मान लो कि sugar is 2 ppm in solution. Sugar is 2 ppm in solution. इसका क्या मतलब हुआ? 2 ग्राम ऑफ sugar, 2 ग्राम ऑफ sugar is present in 10 to the power 6 gram of solution. Okay, 2 gram of sugar is present in 10 to the power 6 gram of solution. You can calculate, you can derive the formula, or you can formulate how to calculate the parts per million. Parts, formula of parts per million equal to mass absolute divided by mass of solution multiplied by 10 to the power 6. ओके, पार्ट्स पर मिलियन का ये 2 ppm का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट्स जो प्रेजेंट है 10 to the power 6 पार्ट में. ओके, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट and only you have to know. Okay, next concentration term is molarity. Very very important term, so I would like to erase it. Okay, ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं. छठा कंसंट्रेशन टर्म आपका है मोलारिटी. मोलारिटी इसका क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution okay, the number of moles of solute present in 1 liter of solution, it is known as molarity. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मोलारिटी ऑफ शुगर, मोलारिटी ऑफ शुगर aqueous solution is 5 m. इसका क्या मतलब हुआ कि
5 moles of sugar, 5 moles of sugar are present in 1 liter solution. 1 liter solution. Sorry. Molarity of H. Another example. Molarity of hydrogen ion is 3m. 7m. ठीक, क्या होगा? 7 moles of hydrogen ions are present in 1 liter solution. ओके, अब यहां से फार्मूला निकाल सकते हैं मोलारिटी का। तो फार्मूला को थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देता हूं। मोलारिटी को कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in a liter. Okay, this is the formula to find out molarity. अब आप लोगों को पता होगा कि मोलारिटी के लिए आवश्यक है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जिस किसी का भी निकालना होगा रख देंगे उसका गिवन मास और उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे, हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। अब यहां से एक आवश्यक बात है कि नंबर ऑफ मोल्स मोल करके इसका यूनिट होगा, वॉल्यूम का लीटर होगा। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। इसको सिंपली हम एक्सप्रेस करते हैं एम, कैपिटल एम से। मोल पर लीटर को सिंपली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कैपिटल एम मोलारिटी। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स से। बिना न्यूमेरिकल्स के जो है ये सब क्लियर होने वाला नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड मोलारिटी ऑफ find molarity of 40 gram NaOH, 40 gram NaOH dissolved in 250 ml solution. In 250 ml solution. ओके, वेरी इजी सॉल्व करना है आपको। देखो
40 ग्राम गिवन मास एब्सोल्यूट गिवन मास इक्वल टू 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, यस। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 इट विल कम आउट 40 ग्राम। ओके, अब वॉल्यूम देखो दे रहा सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml। इसको लीटर में चेंज करोगे 250 बाई 1000 लीटर। अब सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दो, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 250 बाई 1000। ओके, गिवन मास आपका 40, मॉलिक्यूलर मास 40, 250 बाई 1000, 40 मल्टीप्लाई 1000 बाई 40 मल्टीप्लाई 250। This 40 cancel, this 0 will be cancelled by 0. 4 m. The molarity of solution will be 4 mole per liter. 4 mole per liter. Understand? I think you can do the question easily. There is nothing to terrified or horrified. Okay? Now I am going to give some questions for homework. Okay? Can I erase? Okay. होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। ये 2 क्वेश्चन है, उसका हम आंसर बता देंगे पर क्वेश्चन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के लिए, फाइंड द मोलारिटी of 4.9 ग्राम ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 in 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा 0.1 m। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3m solution। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 31.8 ग्राम। 31.8 ग्राम। ओके।
That's all for today. Students, thank you very much. Keep on educating.